Hello students, I am Swarandeep Kaur and welcome to my YouTube channel Atomic Camp. And today's our topic is hybridization and structure of molecules part 2. First part we have done in our previous class. So we are doing our next part 2, in which we are studying about the structure of the molecules which have lone pair also. Okay, so let me start it. So if we have lone pair, the same process we are taking, there is n number of valency electrons. In previous class I taught you about this, valency electron plus number of monovalent atom plus minus charge and divided it by 2. Okay, so if there is n value is 2, then our hybridization is sp and sp and structure is, or we can say geometry, linear, okay. In this case lone pair and bond pair, we also count lone pair and bond pair. So first I tell you that what is lone pair and bond pair. Bond pair are those number of electrons which takes part to form bond, जो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. Lone pair are those valency electrons which never ever participate in the formation of a bond. In some cases, if there is requirement to form a coordinate bond, then these lone pair electrons participate in bond formation. Otherwise, these electrons doesn't participate in bond formation. Okay, lone pair अपन कह सकते हैं कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बना सकते हैं लेकिन बना नहीं रहे. क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि उनके ऊपर जो न्यूक्लियस है उनको ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करके रखता है कि जल्दी से किसी और के साथ में बॉन्ड नहीं पार्टिसिपेट करते बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर. ओके, तो लोन पेयर होते वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ये. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 एंड 2p3. तो यहाँ पे देखो ये अपने सारे के सारे क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम विच दीज थ्री आर bonding electrons, these are bonding electrons and this one is lone pair electrons. ये जो दोनों है ना, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्या है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स है. दैट मीन्स वी कैन से इन नाइट्रोजन फैमिली देयर इज वन लोन पेयर इज प्रेजेंट, वन लोन पेयर, और इलेक्ट्रॉन कितने, 2. तो नाइट्रोजन फैमिली के पास में एक लोन पेयर, ऑक्सीजन फैमिली के पास में देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अगर हम फ्लोरीन फैमिली के पास में बात करें देयर इज 3 lone pairs are present, 3 lone pair electrons are present. ओके, कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, देखो बस लोन पेयर होते ही नहीं के पास में, उसके बाद में इनर्ट गैसेस आ जाती है, जैसे ऑर्गन आ गई, नियोन आ गई, इनके पास में कितने होते हैं, 4 होते हैं. ओके, बिकॉज वी नो organ gases, organ, neon, these are noble gases which never participate in bond formation. In some cases these are takes part in bond formation. For example, xenon can form a bond and also participate in bond formation and make a मॉलिक्यूल. क्या करता है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है और पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर. जिनॉन अदरवाइज कोई भी नोबल गैसेस जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती, लेस रिएक्टिव होती है और वी कैन से नॉन रिएक्टिव होती है. ज्यादा सही रहेगा कि हम इसको बोलें कि ये क्या होती है, नॉन रिएक्टिव होती है. ओके, तो देखो इसके अंदर यहाँ पे अगर हम बात करें lone pair and bond pair, in sp there is no lone pair, 0 lone pair and 1 bond pair is present. In sp2 there is structure is square plane
trigonal planar, trigonal planar, trigonal planar structure. In previous class we have studied it about this. So there is 0 lone pair and 2 bond pairs are there is 2 bond pairs and there is 3 bond pair, 2 and 1, 3 bond pairs are present. If we talk about 4, there is sp3, structure is tetrahedral, शॉर्ट में इसको ऐसे बोल देते हैं ना, टेट्राहेड्रल, TH, ओके, टेट्राहेड्रल। तो देखो इसके अंदर 0 लोन पेयर एंड 4, इसका एग्जांपल हम कर चुके हैं, वी हैव डन इट इन अवर प्रीवियस क्लास। कौन सा लिया था? CO2। फॉर दिस वी टेक BF3 और फॉर दिस वी हैव टेक CH4। अब देखो टेट्राहेड्रल के अंदर हो सकता है कि 0 लोन पेयर हो सकता है 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर हो। तो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? पिरामिडल। क्या हो जाएगी? पिरामिडल, पिरामिडल। इसका एग्जांपल देखो जिसमें 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, कौन सा हो जाएगा? NH3, अमोनिया। अमोनिया की स्ट्रक्चर देखो, NH3, अमोनिया। एन फाइंड आउट करेंगे, 5 + 3 divided by 2, we have done this in our previous class, okay, you can see it there। 8 divided by 2, there is 4, that means hybridization is sp3। so नाइट्रोजन 3 तो ये हो गए और 1 क्या हो गया? लोन पेयर, है ना। इसका ऑर्बिटल व्यू देखो, ये नाइट्रोजन 4 ये बना लिए हमने, और 3 के साथ में क्या जोड़ देना है? हाइड्रोजन, 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 और ये एक क्या हो गया? लोन पेयर, बिकॉज S के अंदर 2S एंड 2P, 1 2 ये हो गए थे, ऐसे किया था हमने। तो इसके अंदर ये तीनों तो किसमें पार्टिसिपेट कर गए? बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर गए sp3, और एक अपने पास में क्या बच गया यहाँ पे? लोन पेयर। देखो यहाँ पे ये 3 थे, sp3 था, तो ये क्या है? लोन पेयर। दिख रहा है ना, यहाँ पे ये क्या है? लोन पेयर, और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ यहाँ पे, ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। गॉट इट बेटा। और ये वाला अपना क्या है? लोन पेयर। 4 लिए थे हमने, 1S एंड 3P, ओके। तो ये अपने 4 इस तरह से अपने पास में ऑर्बिटल थे, जिनमें से 3 के साथ तो हाइड्रोजन और एक अपने पास में क्या आ गया? अलग से आ गया था, है ना, है ये भी हाइब्रिड। इसमें क्या रह गया? लोन पेयर, जिसके साथ में कोई भी एलिमेंट नहीं अटैच हुआ। गॉट इट बेटा। तो ये हमारा उसका एग्जाम्पल हो गया बेटा। इसमें देखो अभी ये हो गया। नेक्स्ट देखो, इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? NH3, ठीक है। नेक्स्ट देखो, sp3 में हो सकता है कि 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर हो जाए, ठीक है। अब जब हमने एक लोन पेयर कर दिया था NH3 के अंदर, जब हमने एक लोन पेयर कर दिया था, तो हमारे देखो ये 3 तो हाइड्रोजन थे, हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह से थी ना। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमने एक लोन पेयर अटैच करना है, यानी कि हमने इसको इधर कर दो, ये था इस तरह से। हमने क्या किया, जब तक ये बॉन्ड पेयर है दैट मीन्स कि रिपल्शन सभी का सेम है। रिपल्शन जो लोन पेयर है उनके बिटवीन रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर के। रीजन होता है कि जब हम बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाने में भी बिजी है, तो वो रिपल्शन एक दूसरे के ऊपर कम लगाएंगे। अब ये जो लोन पेयर है, इसको अब एज्यूम करो कि ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये किसी और के साथ में इसका अट्रैक्शन शो हो ही नहीं रहा। यहाँ पे ये प्योरली इलेक्ट्रॉन अपनी फॉर्म में प्रेजेंट है रिपल्शन लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये रिपल्शन इसके ऊपर भी एग्जर्ट करेगा, इसके ऊपर भी एग्जर्ट करेगा, उसके ऊपर भी अपना रिपल्शन एग्जर्ट करेगा।
तो अब क्या हो जाएगा, ये इन सभी के ऊपर रिपल्शन क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा, ज्यादा लगाएगा, तो ये किस साइड में हो जाएंगे, नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो क्या ये पिरामिडल शेप बन गई ना, देखो पिरामिडल शेप बन गई यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से होता है ना पिरामिड, ये देखो, तो ये इसकी शेप कैसी हो जाती है, पिरामिडल शेप हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसके अंदर से, देखो पहले तो हमने ये सारे बॉन्ड पेयर रखे थे, फिर ये हटा दिया, तो ये कैसी शेप होगी, पिरामिडल, है ना। इसकी ज्योमेट्री तो अभी भी कैसी है, टेट्राहेड्रल, और स्ट्रक्चर कैसी है, पिरामिडल। ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये होता है कि इन ज्योमेट्री वी कैलकुलेट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, बट इन स्ट्रक्चर वी ओनली सी द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ किसको देखेंगे कि उसके ऊपर एलिमेंट्स कौन से लगे हुए हैं, उसकी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, पिरामिड की तरह होगी ना, देखो लुक एट हियर, बिल्कुल पिरामिड की तरह होगी। अब क्या होता है कि मान लो कि दो क्या है, लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, क्या ये वी शेप हो गया, देखो इस तरह से, वी ऐसे ही होता है ना, ऐसा ही तो होता है, ऐसे कुछ कुछ, है ना, तो ये हो गया ना वी शेप, स्ट्रक्चर कैसी होगी, वी शेप होगी। हमने इसका एग्जाम्पल करना है जिसमें से हमने ये दोनों लोन पेयर है ना, ये हटा दिए, ये लोन पेयर बन गए, ऐसा ही था ना अपना पिरामिडल शेप। देखो इसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं अपन, 3D के अंदर ही तो देखना है ना, इसको घुमा के किसी तरफ भी देख सकते हैं हम, तो इस तरह से देख लो, इस तरह से देख लो, कैसे भी देख लो, समझ में आई बात, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दो लोन पेयर को हटाना है आप, ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में कन्वर्ट करना है। Let us take an example that is H2O. 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर का कौन सा लेते हैं, H2O। एग्जाम्पल है अपना H2O, ये है ऑक्सीजन अपना सेंट्रल एटम है, देन 1s2 2s2 ऑक्सीजन, 2p4, that is the electronic configuration for oxygen। ओके, तो अब देखो इसमें कितनी होगी, 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 4, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ये तो तुम्हें आ ही गया होगा, ये हमने पिछली क्लास में भी देख लिया था। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरह से थी, यही तो थी, ऐसे थे ना, 2 इस तरह से और 2 इस तरह से। अब क्या होता है कि ये था अपने पास में 2s2p, ये लो, ये लो, 1 2 3 ये हो गया ना 4, ऐसा ही हुआ। अब इसके अंदर ये दोनों तो साथ में तो कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, और ये दो क्या है, अपने लोन पेयर हो गए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में तो इन चारों ने ही पार्टिसिपेट किया था, sp3 था। तो ये दोनों लोन पेयर, तो ये देखो 2 2 यहाँ पे लगा दिए, दूसरे कलर से लगाते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो ये लगा दिए 2, ये तो 2 लोन पेयर हो गए, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, समझ में आई बात। अब ये हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया इसकी, H2O की स्ट्रक्चर, ऐसा ही तो बनाते हैं हम, समझ में आई बात। अब देखो NH3 जो है, जब हमने NH3 को देखा था, ये वाला था अपना NH3 वाला, इसके अंदर देखो अपने पास में ये इसकी स्ट्रक्चर आई थी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार बहुत तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कि ये आ गया अपने पास में ना 2s एंड 2p, 2p के बाद में क्या आना था, 3s आएगा ना। अगर हम p की बात करें, फॉस्फोरस की p की बात करें अगर हम, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 3s2 3p3, और उसके बाद में थर्ड शेल d आएगा ना, ऐसा ही होना था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इस तरह से हो गया, और ये d के 5 हो जाते हैं। तो ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाने के लिए जगह है, नहीं, यहाँ पे न्यू शेल आ गया, थर्ड शेल, है ना। तो नए शेल में इलेक्ट्रॉन जल्दी से जा नहीं पाते, क्योंकि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होती है, वैसे वैसे ही क्या होता है, एनर्जी ऑफ शेल ऑल्सो इंक्रीज, एनर्जी जो शेल की एनर्जी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ये नहीं करना
कि इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को वहां पे शिफ्ट कर दें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक शेल से दूसरे शेल पे जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी उसे देनी पड़ेगी। लेकिन फॉस्फोरस के अंदर क्या होता है, क्या ये एक ही शेल है? यस, सेम शेल, डीजनरेटेड शेल। तो इनके अंदर क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 2 3 और ये डी पूरा का पूरा क्या होता है, वैकेंट। तो हम क्या करती हैं, यहां से ये इसमें एक 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। डी सब शेल, डी जो सब शेल था वो हमने यूज में ले लिया। तो यहाँ पे इसको यूज में ले लेंगे तो क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेगा, है ना, करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। तो हम इसका sp3d सब शेल भी बना सकते हैं। डेट मीन्स 3 4 5 कितने 5 ऑर्बिटल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डेट मीन्स कि फॉस्फोरस के साथ में 5 सराउंडिंग एटम्स अटैच हो सकते हैं, वेयर एज इन नाइट्रोजन ओनली 3 सराउंडिंग एटम्स आर अरेंज्ड, है ना। सिर्फ कितने अरेंज होते हैं, सिर्फ 3 एटम्स अरेंज हो सकते हैं। फोर्थ अपन कोऑर्डिनेट के साथ में अरेंज कर लेते हैं, वो उसका लोन पेयर वाला है, यही होता है ना। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये वाले हो गए इसके सराउंडिंग एटम्स, तो इसलिए PCl5 भी मिलेगा हमें, PCl3 भी मिलेगा। ये कहाँ पे यूज आता है, जो हेलो एल्केन्स वाला जो आपका चैप्टर है 12th क्लास के अंदर, उसमें ये बहुत ज्यादा यूज में आता है। इन रिएक्शन मैकेनिज्म्स many times we will use PCl3 and PCl5 to make halo compounds, and sometimes we will use it in the formation of alcohol, where we use PCl3 and PCl5 in their chemical properties, है ना। तो PCl3 और PCl5 को बहुत जगह पे हम यूज में लेते हैं। अब PCl3 में भी प्रेजेंट और PCl5, क्योंकि यहाँ पे अगर ये तीनों सब शेल इलेक्ट्रॉन यूज में आ रहे हैं तो एक इसका लोन पेयर रह जाता है। ओके, लोन पेयर रह जाएगा तो कौन सा हो गया, PCl3 हो जाता है। बट अगर वो आगे शिफ्ट करना चाहे, अगर 5 भी उसके साथ में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी उसके पास में स्पेस है, क्योंकि डी पूरे का पूरा सब शेल जो है पूरे का पूरा वैकेंट है। वैकेंट होने की वजह से जगह ज्यादा होगी, तो वहां पे वो 5 को भी अपने पास में रख लेगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास में जो है सिर्फ कितने हैं, 3 ही है, 4 चौथा उसका एस हो गया, 4 ही है उसके पास में सब शेल्स, उसके अलावा उसके पास में ऑर्बिटल्स नहीं है। उसके बाद में न्यू शेल आ जाएगा एस, और एस सब छोटा सब शेल है और एक नए शेल के अंदर है, तो वहां तक हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है समटाइम्स कि NH3 is present, where is PCl5 is present, but NaCl3 and NCl5 is not present। NCl5 नहीं present होता, NCl3 present होता है, लेकिन PCl है वो PCl3 भी होता है एंड PCl5 दोनों में ही present होता है। ओके, so we can give the answer by using this method, where we can say in PCl5 phosphorus there is vacant d orbitals are present, that's why there is space is present to attach more elements with phosphorus। okay, but in nitrogen atoms there is d subcell is absent, that's why NCl5 is not found। okay, नहीं होता इसका। okay, now look at here बेटा, H2O हो गया हमारा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हो गया, एंड द शेप इज V शेप। ओके, नेक्स्ट वी विल डू इफ देयर इज 5 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। 5 की बात कर लेते हैं। 5 के लिए क्या था, sp3d था, डेट मीन्स इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इस तरह से थी ना, इस तरह से यही थी ना। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या किया था, PCl5। ये तो था कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर, इफ देयर इज ऑल सराउंडिंग एटम्स आर बॉन्ड पेयर, so if there is lone pair are also absent then present, then we will take the another example। देखो sp3d एग्जाम्पल हमने किया था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री थी, एंड द एग्जाम्पल इज PCl5। Now if there is one lone pair and one bond pair, 4 bond pair are present, then we will take
lone pair and bond pair. In this case there is lone pair and bond pair. इसके अंदर 0 lone pair and 5 bond pair are present. इसी के अंदर अगर हम करें कि 1 lone pair and 4 bond pair are present, then we will take the example of SF4. किसका एग्जाम्पल ले लेंगे? SF4 का एग्जाम्पल ले लेंगे. देखो यहाँ पे SF4 सल्फर 3S2 3P4. तो देखो यहाँ पे 3D भी प्रेजेंट है जो कि वैकेंट है. ये S हो गया और ये P हो गया. 1 2 3 4 है ना, इस तरह से हो गया. तो यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, कितने चाहिए हमें? D निकाल लेंगे. N 5 चाहिए हमें ऑर्बिटल्स. तो 5 के लिए हमारे पास में ये एक D आ गया. तो हमने ले लिए 1 2 3 4 5. ये हमारे पास में 5 आ गए. sp3d आ गया. अब इसको क्या करेंगे? एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं. एक्साइटेड स्टेट के अंदर देखो हमने क्या किया, 1 2 3 एंड 4 इसको आगे ले गए. तो ये एक पड़ा है ना इसके पास में लोन पेयर, 5 थे और अपने पास में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कितने हैं बॉन्ड पेयर? 4 बॉन्ड पेयर है. तो ये हो गया सल्फर ऑक्टाहेड्रल. देखो कैसा था इसकी ज्योमेट्री, इस तरह से थी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. तो फ्लोरीन ऐड करने. देखो इसमें हमें ये रहता है कि हम लोन पेयर कहाँ पे ऐड करें, यहाँ पे ऐड करें या यहाँ पे. मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ. 5 के लिए अपनी स्ट्रक्चर कैसी थी? इस तरह से थी. ये ऊपर हो गया एक और एक नीचे था, इस तरह से ही था ना. हमने इसके अंदर क्या करना है कि हमने इसमें लोन पेयर ऐड करना है और उस जगह पे अटैच करना है जहां पे क्या हो कि रिपल्शन सबसे कम लगे, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर. तो लोन पेयर हम या तो यहाँ ऐड कर सकते थे एक्सियल पोजीशन, एंड वी कैन आल्सो ऐड इट एट अवर इक्वेटोरियल पोजीशन. सो विच पोजीशन इज मोर फेवरेबल? तो वो फेवरेबल कंडीशंस होगी, स्टेट होगी जहां पे क्या होगा कि लगने पर रिपल्शन कम आए. अगर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, अगर मैं लोन पेयर मान लो यहाँ लगा रही हूँ है ना, तो ये मेरा लोन पेयर है, ये इसके ऊपर भी एक्सर्ट करेगा अपना रिपल्शन, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर. एंड बॉन्ड पेयर इज 90 डिग्री. कितना है इसके अंदर बॉन्ड एंगल? कितना है? 90 डिग्री है. 90 डिग्री है तो पास में हो गया, पास में हो गया तो क्या हो गया? रिपल्शन ज्यादा हो गया. अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे है ना इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर लगाती हूँ, तो ये कितना है? 120 और सिर्फ कितना लगेगा? इन दोनों के ऊपर कितना लगेगा? 90 डिग्री लगेगा. बाकी दोनों के ऊपर कितना लगेगा? 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है इसका, तो रिपल्शन कम लगेगा. दूर हो गया ना, तो बॉन्ड एंगल कहाँ पे लगा दिया हमने? लोन पेयर कहाँ पे लगा दिया? यहाँ पे. तो क्या इसकी शेप सीसो होगी ना? सीसो कह दो, के शेप कह दो, है ना, इस तरह से. कैसी शेप है ये? सीसो शेप होगी. इसी तरह से होता है ना सीसो. ये देखो, ये देखो, है ना, देखो इस तरह से. तो ये शेप कैसी हो जाती है? सीसो शेप हो जाती है. इसी को अभी हम करते हैं. ये हो गया फ्लोरीन और ये हो गया अपना लोन पेयर और ये फ्लोरीन और ये भी अपना क्या हो गया? फ्लोरीन. देखो बिल्कुल यही शेप बना के दिखा देती हूँ मैं तुम्हें अभी. देखो ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया. और जो ये वाला था अपना, ये क्या था? लोन पेयर. लोन पेयर को हम स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते, तो जो इसकी शेप है वो कैसी होगी? सीसो. ओके. अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम ले रहे हैं, हमने यहाँ पे ले लिया था, देखो इसी के अंदर ही करवा देती हूँ यहीं पे. टू लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड. टोटल तो 5 ही रखने हैं हमने. 2 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर. तो इसका अपन ने एग्जाम्पल ले लेना है ClF3. ClF3.
ClF3 के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि देखो क्लोरीन का देखो 3s2 3p5, ये हो गया, ये 3d यहाँ पे पड़ा है ना, तो 3s 3p 1 2 3, ओ ज्यादा बना दिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आ गया इसका D। अब हमने क्या कर देना है, इसको आगे ले चलते हैं, यहां से यहीं पे एक्साइटेड कर देती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, गॉट इट बेटा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, sp3d, ये हो गया sp3d हो गया। तो यहाँ पे देखो अगर हमने sp3 लेना होता है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है, ये लो। पर ज्यादातर क्या करते हैं कि यहाँ पे रखने की बजाय इसको यहाँ पे ही कर लेते हैं, पहले इसके ऑर्बिटल निकाल लेते हैं कि कितने आगे, देखो 5 चाहिए, 1 2 3 4 5, ये हो गए। तो यहाँ वाले को रब करके और कहाँ पे लगा देते हैं, यहीं पे ही लगा देते हैं। गॉट इट बेटा। तो देखो ये हो गया sp3d हो गया। तो इसके अंदर हमने क्या किया, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है sp3d की, वही 5 अभी हमने बनाया था, वो तो बनाना ही बनाना है। क्लोरीन हो गए 1 2 3 4 5 हो गए। 5 के साथ में हमने क्या लगाना है, कितने फ्लोरीन लगाने हैं, 3। तो देखो मैंने अभी भी आपको बताया था कि हमने कहाँ पे लगाना है अपना लोन पेयर, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। ये हमेशा ध्यान रखना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लगेगा इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, और जो अपनी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसके अंदर हम लगाएंगे उसके एक्सियल पोजीशन के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि उसमें एक्सियल मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है और इसमें इक्वेटोरियल मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। बाकी सभी के अंदर सिर्फ इसी के अंदर इक्वेटोरियल लगेगा, इसके आगे जो भी आता जाएगा उसमें कौन सी पोजीशन पे लगाते जाएंगे, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल का मतलब है कि जो इस तरह से निकला हुआ है ना, ऊपर नीचे लगा रहे हैं, उसके अंदर ही लगेगा। सिर्फ यही एक ऐसी है जिसके अंदर हमने लोन पेयर जो अपना है वो कहाँ पे लगाना है, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर लगाना है। तो F हमने लगाने हैं, देखो 3F लगाने हैं, और लोन पेयर कितने लगाने हैं, 2 लगाने हैं। तो ये 2 लोन पेयर हो गए, ये हो गया एक फ्लोरीन, ये एक हो गया फ्लोरीन, और एक ये हो गया फ्लोरीन। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूं इससे। देखो टोटल कितना है अपने पास में, 5। पहले मैं वही 5 बना लेती हूँ, ये 5 हो गए, 3 4 5। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं फ्लोरीन को। तो फ्लोरीन लगाते टाइम हमने कहाँ पे लगाना है कि लोन पेयर को पहले ध्यान दे लेना है कि दो लोन पेयर कहाँ पे लगाने हैं, कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे। तो मैंने लोन पेयर लगा दी इक्वेटोरियल पे, एक तो इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे। अब यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, और यहाँ पे फ्लोरीन है। क्या ये ऐसा ही हो गया ना, देखो ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, और ये रहा फ्लोरीन, और ये दोनों कौन से थे, लोन पेयर थे, जो कि हम ज्योमेट्री में तो काउंट कर रहे हैं बट इसकी शेप के अंदर काउंट नहीं कर रहे। क्यों नहीं करते, क्योंकि शेप जो है, शेप का मतलब है उसकी कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी दिख कैसी रही है, हम उसको कैसा देख पा रहे हैं, वो क्या है, उसकी शेप है। तो शेप हमें दिखेगी मॉलिक्यूल से, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को तो देख ही नहीं पाते, हम किसको देखते हैं, एलिमेंट्स को देख पाते हैं। तो हम किससे शेप देखते हैं, उसके एलिमेंट्स से, और एलिमेंट्स लगते हैं जहां पे, वही उसकी क्या हो जाएगी, शेप हो जाएगी। यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसकी शेप कैसी होगी, क्या ये टी शेप होगी ना, लुक एट हियर बेटा, इस तरह से है ना, ये इस तरह से। तो इसको ऐसे भी तो करके देख सकते हैं, देखने का तरीका ही तो है। तो ये कौन सी होगी, इसकी टी शेप होगी। गॉट इट बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन करते हैं sp3d2। sp3d2 यही था ना 6 के लिए, प्रीवियस क्लास में वी हैव डन दिस। sp3d2 पिछली क्लास में कर चुके हैं। इसके अंदर ये सारी एक एक तो कर ही चुके हैं, अब इसका बस लोन पेयर वाला ही तो कर रहे हैं। इसके अंदर कितना होता है भाई, 6 होते हैं, n की वैल्यू इज 6, और इसके एग्जांपल हमने लिया था SF6 लिया था, यही लिया था ना। अब देखो इसके अंदर
अगर अपने लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इन दिस केस देयर इज 0 लोन पेयर एंड 6 बॉन्ड पेयर आर present. In next we will take the 1 lone pair and 5 bond pair, 1 lone pair and 5 bond pair, यही लेंगे. तो एग्जांपल ले लेते हैं BRF 5 एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके अंदर. BRF 5 के अंदर ब्रोमीन का देखो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन वही यहाँ पे क्लोरीन 3 पे होता है और ये कितने पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा. 4s2 4p5 ये हो गया. देखो ये तो हो गया 4s 4p एंड देन 4d हो गया, ये हो गया. हमें कितना चाहिए, sp3d2 sp3d2, ये हो गए इसके 2, ये हो गए भाई 1 2 3 4 एंड 5. 5 के साथ में हमने क्या जोड़ देना है, फ्लोरीन. ये देखो 1 2 3 4 5 क्या जुड़ गए, फ्लोरीन, और 1 क्या आ गया, अपना लोन पेयर आ गया. स्ट्रक्चर कैसी होगी अपनी, देखो ये ब्रोमीन हो गया, और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कहाँ पे लगाना है हमने लोन पेयर, एक्सियल पे. सिर्फ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में कहाँ पे लगाना है, इक्वेटोरियल के अंदर, बाकी सभी में एक्सियल पे. ये एक्सियल पे हमने लगा दिया, बिल्कुल ही सिंपल. इसके आगे वाला पोर्शन हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, यहाँ पे आते ही पूरा क्लियर हो जाता है. किसी भी मॉलिक्यूल की हम स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं. अभी मैं 2-4 और ले लूंगी जिससे कि अपना और भी क्लियर हो जाएगा. ये हो गया स्ट्रक्चर इसकी, ठीक है. ये हो गया एक्सियल पोजीशन पर. क्या ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया, ये देखो ये स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया, पिरामिडल हो गया, क्योंकि इसको तो हम काउंट करेंगे ही नहीं. ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे क्या कर दें, नेक्स्ट देखो, अगर हम क्या कर देते इसमें 2 लोन पेयर, 6 करना था टोटल, 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर कर देते. 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर के साथ में हम किसको ले लेंगे, जिनोन F4 को ले लेते हैं. जिनोन के साथ में देखो क्या होता है, जिनोन के अंदर हमने आएगा तो देखो sp3d2 ही आएगा. हमने ये पहले कर ही चुके हैं, इसको करना है तो कर भी लेते हैं. 6 + 4 डिवाइडेड बाय 8, जिनोन पे 8 आते हैं, 8 + 4 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 6. ये देखो है ना, ये तो कर चुके हैं. ये तो अपना पोर्शन बहुत बार हो गया, बार बार इसको हम नहीं करेंगे, ऐसी जगह ले लेते हैं, फिर एक ही जगह पे नहीं होता सारा. देखो यहाँ पे करते हैं. अब हम जिनोन है, जिनोन की स्ट्रक्चर वही देखो sp3d2 है, तो सबसे पहले फटाफट ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया करो, ठीक है. अगर ऑर्बिटल व्यू बनाना है तो, अगर ऑर्बिटल नहीं बनाना, हमसे पूछा ही नहीं ऑर्बिटल, तो फटाफट ऐसे ऐसे लगाया, ठीक है. ये हो गया 5 6 लग गए. अब क्या करना है, 4 बॉन्ड पेयर का है तो ये लो लगा दिए. लोन पेयर हमने देख लिए कि सिर्फ जिसके अंदर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है ना, जिसके अंदर 5 है, 5 तक के अंदर, तो उससे पहले तो एक्सियल इक्वेटोरियल आता ही नहीं. एक्सियल इक्वेटोरियल 5th से स्टार्ट होता है, तो 5th के अंदर आते ही हमने क्या करना है कि जो उसका इक्वेटोरियल पोजीशन है वहां पे हमने लोन पेयर को लगाना है. बाकी जगह पे जो जो दिया है वो जोड़ देते हैं. लेकिन जैसे ही फिर क्या आ जाता है, sp3d आ जाता है और sp3d2 आ जाता है, उसके बाद से हम किस में जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, उसके अंदर इसके एक्सियल पोर्शन के ऊपर, है ना, ऊपर और नीचे. अब मान लो कि यहाँ पे भी लग गया, यहाँ पे भी लग गया. अब ये तो अपने 3 2 4 कर दिया था, अगर हम 3 3 का रेशो कर देते तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें लगाना ही पड़ेगा, अपने पास में ऑप्शन ही नहीं है. समझ में आई बात. हमने तो शुरू के देखनी है कि जब तक डिफरेंस है कि एक्सियल या इक्वेटोरियल कहाँ लगाएं, कंफ्यूजन है, तो हमने कहाँ पे लगाना है, एक्सियल के ऊपर लगाना है. जब जगह ही नहीं बची तो फिर तो इक्वेटोरियल के ऊपर लगाना ही पड़ेगा हमें लोन पेयर. ओके, तो यानी कि तुमने क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना है. बिल्कुल सिंपल है, एन रखना, एन को रख के बाद में उसके बाद में जितने भी वो नंबर आएगा, एन की वैल्यू आएगा, एस से शुरू कर देना. एक एस ले लेना, फिर पी को लेते जाना. मान लो अगर 2 ही चाहिए तो 1 एस और 1 पी ले लिया. अगर हमें 2 चाहिए, टोटल 3 चाहिए तो 1 एस और 2 पी ले लिए. 4 चाहिए तो 1 एस और 3 पी ले लिए. अब पी के तो 3 खत्म हो गए क्योंकि एस एक ही होता है तो वो ले लिया, 3 पी होते हैं वो ले लिए. चाहिए कितने, 5 चाहिए. 5 चाहिए तो एक क्या शुरू कर दिया, डी शुरू कर दिया. अब डी के पास में टोटल कितने होते हैं, डी के पास में 5 होते हैं, तो बस उसके बाद में तो D1 D2 D3 ऐसे ऐड करते जाना, हो जाएगा, है ना. एस फर्स्ट वाले का एस और पी, फिर sp2 sp3 और फिर sp3d sp3d2, ठीक है.
इससे आगे अपने आता ही नहीं है। अब बात आती है कि लोन पेयर कहाँ अटैच करना है। देखो जैसे अगर आपको थियोरेटिकली पूछा ना तब तो ये सारी लंबी चौड़ी प्रोसेस करके दिखानी है, अदरवाइज सिंपली देखना कि n निकालना, n को निकालते ही sp3d वो अटैच कर ही दोगे आप, है ना। ऐसे बना के ये बॉक्स बना के, जरूरी नहीं है कि आप ये बॉक्स बना के करके दिखाओ, है ना, ये जरूरी नहीं है। आपने तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से करना है, तो क्वेश्चन आपका इससे सॉल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल तरीके से भी हो रहा है। उसके बाद में क्या करना कि sp3d है, उसके बाद में ये देखना कि यहाँ पे कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, जितने दिए हुए हैं ना उतने तो साथ जोड़ देना, ठीक है। और एक बात जरूर ध्यान रखना, वो भी वैसे इतनी हार्ड एंड टफ नहीं है, बात सिंपल ही है कि अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये है ना, ये तो एक एक बॉन्ड ही बनाते हैं। ऑक्सीजन कितना बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। जैसे मान लो कि कार्बन के लिए बात करते अगर हम, है ना, इस तरह से बात करते, अब इसमें हम सिंपली इसको कैसे कर सकते थे कि देखो कार्बन के ऊपर हमें पता है कि ये 2 लगे हैं तो एक S होगा और एक P होगा, ये तो बात होगी यहाँ पे। अब कार्बन के ऊपर लगाएं कैसे, 2 है तो हमें स्ट्रक्चर भी पता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस यही है, हमने इस तरह से लगा दी। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है कि हमें ये नहीं पता कि अब हम इसके ऊपर, हमारे पास में ये 2 थे तो क्या ये इतना ही होगा, इतना तो नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है 2 और कार्बन कितने बनाता है 4, तो एक इधर और लगा दो, एक इधर लगा दो, हो गया पूरा, है ना। तो आप थोड़ा सा इसको अगर अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के भी करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व आउट होते हैं, इसमें वो इतना नहीं है, हार्ड एंड टफ पोर्शन नहीं रह जाता हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन अगर थियोरेटिकली पूछा जाता है तो हमें पूरे का पूरा करके दिखाना पड़ता है, ऑर्बिटल व्यू पूछा जाता है तो हमें ऑर्बिटल व्यू भी उसका बना के बताना पड़ता है। अब मैं कुछ एक ऐसे लेती हूँ, जैसे कि अपन 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं वैसे ही, है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया H2SO4, है ना, इसकी स्ट्रक्चर निकालनी है, मान लो हमें H2SO4 की स्ट्रक्चर निकालनी है, तो सल्फर अपना सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब देखो इसमें कितने हैं, 4 and 2 6, यही हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम निकालें तो 6 कार्बन का 6, सॉरी सल्फर का 6 हो गया, एंड 2 ये मोनोवैलेंट हो गए, 2 आ गया, तो कितना आ गया 4 आ गया ना, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, समझ में आई बात, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। अब ये वाला अपने एटम से नहीं निकल के आ रहा था, यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है हमें, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन को मैं उसी तरीके से करवाती हूँ कि n को फाइंड आउट करके आप करो, ओके। तो ये हो गए 6 और 2 ये हो गए 4 हो गए, तो 4 से कौन सा आ गया sp3। अब sp3 है तो s की स्ट्रक्चर ये टेट्राहेड्रल की ये स्ट्रक्चर होती है। अब देखो 4 ऑक्सीजन है तो पहले चारों ऑक्सीजन को ऐड कर दो, ऐड कर दिया। अब 2 हाइड्रोजन है तो किसी 2 के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगा दो, यानी इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने थे, एक ये रहा एक ये रहा पूरा, इसने भी 2 बनाने थे, एक ये रहा एक ये रहा पूरा। अब कौन बच गया, ऑक्सीजन, ये लो, समझ में आ गई बात। ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है, सल्फर 6 तक बना ही सकता है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें ना। तो H2SO4 की स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है ना, किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका ऑर्बिटल व्यू और देख लो थोड़ा सा, देखो ऑर्बिटल व्यू देखो, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए अपने, है ना, ये ऑक्सीजन हो गया, ये इसका हाइड्रोजन हो गया, इसका हाइड्रोजन हो गया। अब देखो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर का d ऑर्बिटल और ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल, ये इसके साथ में पाई बॉन्ड बना गया और ये इसके साथ में पाई बॉन्ड बना गया। देख लो बहुत ही अच्छा फ्लावर बनता है, ऑर्बिटल व्यू सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, हो गया भाई। तो ये अपना हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने सारा अच्छे से क्लियर किया है। इसके लोन पेयर को लेके भी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन हो, किसी और मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हो, देन यू कैन डीएम्स टू मी, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ओके, यू कैन सेंड अ कमेंट, ओके। तो मैं आपको उस तरह के और भी जो भी आपके एग्जांपल्स है, जो भी आपके डाउट्स है आई विल क्लियर इट, ओके। थैंक यू बेटा, बाय बाय।